Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me Atif Waqqas and I welcome you in the second lecture of Electricity and Magnetism 1. Dear students, in our previous lecture we discussed about the electric fields. We defined electric field. We discussed the calculation of electric field due to a point charge. Then we moved to many point charges and we discussed the superposition principle, which can be used in order to calculate electric field intensity due to many point charges. Then we discussed a system of two charges, which is called a dipole, in which we are having two charges of same magnitude but different sign, separated by some distance d. So we discussed the electric field intensity of dipole, and final expression which I derived was E equals, that is E due to a dipole. So let me write it small d here. It is because I am talking about the electric field due to a dipole. What is a dipole? Let me remind you. Dipole is a system of 2 point charges separated by some distance d, and then we calculated here at point P electric field because of this dipole. और हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई मैं वो लिखने जा रहा हूँ इन दोनों की वजह से. दैट वाज ई डी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. एल हमने ये डिस्टेंस लिया था, डी बाई 2 यहाँ से किसी भी चार्ज तक का डिस्टेंस. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है दैट इज ऑफ लेंथ L एंड वी आर कैलकुलेटिंग इंटेंसिटी हेयर. सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है. अब अगर आप इसको देखें ये R है और ये R है. अब अगर मैं इस E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ इसी एक्सप्रेशन में तो मैं क्या कर सकूँ. E के लिए मुझे मालूम है कि E ड्यू टू एनी इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज, ये भी क्या इस मैग्नीट्यूड भी क्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है. मैं इस वक्त सिर्फ उस फील्ड की मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ. सो वो दोनों का सेम होगा एंड दैट वुड बी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. क्यों सेम होगा? आर दोनों के लिए सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, स्पेस अराउंड दोज टू चार्जेस सेम है. सो के क्यू बाई आर स्क्वायर तीनों प्रॉपर्टीज उसके लिए सेम आ रही हैं. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी सेम होगी. और यही एग्जम्पशन लेके आपने ये डिराइव भी की थी. अब मैं इसको इस ई की जगह सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा. डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट टर्न्स आउट टू बी के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो आई कैन राइट इट दिस वे. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा. 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर आ जाएगा Q साथ में D और नीचे जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ऑफ R एंड दिस R. अब जानते हैं R क्या है. तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह वो सब्स्टिट्यूट करूँगा. बहरहाल ये तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था. मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उस E की जगह E की वैल्यू पुट की है क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे मालूम है. एंड देन E ड्यू टू अ डाइपोल टर्न्स आउट टू बी QD. QD जो है QD क्या है, QD कैन बी रिटन एज P एंड इज द डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट इट्स अ वेक्टर and it's always directed from negative to positive in this direction. So it's a dipole movement QD. Here I put P for dipole movement, and in denominator I'm having 4 pi epsilon naught. Along with that I'm having square of R. So square of R and square root of R. This is the square root of R. Let me substitute the value of R square. And what is R square? From here you can see it's a right angle triangle. R square is L square plus D by 2 square. So I substitute the value for R, that is D by 2 square plus L square. This is for R, and
this square root was already there, so 1 plus 1 by 2, 1 by 2 for the square roots, and then I'm having P divided by 4 pi epsilon naught d square divided by 4 plus L square whole raised to the power 3 by 2. And then you can solve this using binomial theorem, and neglecting the higher order power, you can write epsilon naught L cube. This is the dipole, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल. ये किस केस में है? व्हेन L इज वेरी वेरी लॉन्गर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस. सो ऐसे सिचुएशन में फिर आप ये लिख सकते हैं. आप बाइनॉमियल थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे ये आपको खुद आना चाहिए, थोड़ा सा खुद भी काम करें. इसको इस फॉर्म में लिख लें 1, यानी एल स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और दरमियान में आपके पास क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L स्क्वायर. ये आपके पास आ जाएगा. यहाँ पे प्लस साइन है, ऊपर 3/2 है. अब आप बाइनॉमियल थ्योरम यूज़ करें. ये चूँकि इंतहाई स्मॉल वैल्यू आएगी अगर ये कंडीशन हम पुट कर लेते, ठीक है. इसलिए जब आप बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे आपके पास ये 3/2 इसके ऊपर भी है. आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाता है L स्क्वायर, ऊपर 3/2 उसी की तरह मौजूद है. या अगर आप चाहते हैं कि इसको इसके ऊपर अप्लाई कर लें तो यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाएगा, स्क्वायर और 3/2 वो कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे जो है ये L क्यूब बाहर लिख लें. अब हमारे पास ये सिर्फ रहता है. तो इस पे जब मैं बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई करूँगा 1 प्लस द पावर मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड टर्म डी स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर, एंड प्लस इसके ऊपर फ़िलहाल पहले उसमें टर्म में पावर नहीं होगी, नेक्स्ट टर्म में फिर मज़ीद ये स्मॉल होता जाएगा, इसमें पावर आएगी. रीज़न ये है कि D/L बहुत छोटी वैल्यू देगा. क्यों? क्योंकि L बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर है डाइपोल से वो पॉइंट. तो ऐसी सूरत में आप इसको इग्नोर कर सकते हैं. एंड आप देख सकते हैं कि ये सारा जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उससे हमारे पास सिर्फ L3 आ जाता है, L⁻3. इसीलिए मैंने यहाँ पे L क्यूब लिखा है. सो ये किसी डाइपोल के लिए किसी ऐसे पॉइंट पे जो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ा हुआ है और वो उस डाइपोल से काफ़ी दूर है. लेकिन जनरली ये एक्सप्रेशन हर जगह आप डाइपोल के लिए यूज़ कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं अगर सिचुएशन जो भी हो. And this too is for any point that is on perpendicular bisector. अच्छा, अब हम मूव करेंगे. ये तो प्रीवियस लेक्चर के मुतालिक कुछ था. ज़ाहिर है मैंने यहाँ तक करके इसको छोड़ दिया था, लेकिन ये करना भी एक स्पेशल केस है. लेकिन यहाँ पर इस डाइपोल मूवमेंट को डिफ़ाइन करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया. आगे जाकर हम इस डाइपोल मूवमेंट के बारे में मज़ीद भी बात करने जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तक ये काफ़ी है. अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ. लेकिन उससे भी पहले मैं थोड़ा सा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें बताऊं. जब चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो अभी तक जो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ कर रहे थे ये डिस्क्रीट चार्जेस के लिए था. पॉइंट चार्जेस थे, काउंटेबल थे, तो उसके लिए आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं. हम कंटिन्यूस सिस्टम्स के लिए देखते हैं कि क्या वहाँ पे भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं. सो पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी? डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी इस तरह होता है कि चार्जेस इस तरह किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े होते हैं कि उनको
कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होती है, ख़ास तौर पर कंडक्टिंग सरफेसेस में। तो सरफेस हो, लाइन हो, स्फीयर हो, 1 डायमेंशन में हो सकते हैं, 2 डायमेंशन में हो सकते हैं, 3 डायमेंशन में हो सकते हैं। उन सारे केसेस के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज जो है, जैसे हमने प्रीवियसली जिक्र किया था, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, वो 0 डायमेंशनल केस होता है। तो 0 डायमेंशनल केस के लिए आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम चलते हैं 1 डायमेंशनल केस के लिए। तो 1 डायमेंशनल केस में किस तरह होगा, व्हेन चार्जेस आर uniformly distributed over a line। एक लाइन है चार्जेस का इस तरह और यूनिफॉर्मली पड़े हुए हैं। इट्स अ लाइन ऑफ चार्जेस। मैंने 1 डायमेंशन की बात की। नेचर में हमारे पास होते हैं हमेशा 3 डायमेंशंस हैं, जो ख़ासतौर पर स्पेस की डायमेंशंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो 3 डायमेंशंस आमतौर पे होते हैं, लेकिन 1 डायमेंशन उस केस में आप कंसीडर कर सकते हैं जब बाकी 2 डायमेंशंस 1 डायमेंशन के मुकाबले में इग्नोरेबल हों। जैसे कई किलोमीटर लंबी वायर है, उसका डायमीटर 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर जितना भी है, लेकिन वो किलोमीटर्स के मुकाबले में इग्नोरेबल है। ऐसी केस में हम फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। चार्ज जो है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ऐसे केस में चार्ज कैसे हमें मिलेगा, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ चार्ज। फिर हम क्या करते हैं, इस पूरे सेटअप को हम स्मॉल पेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, और हर एक पेज के चार्ज को हम कह देते हैं DQ। लेकिन इस DQ का मुझे कैसे पता चलेगा, इसका पता चल सकता है किस चीज़ से, सम कांस्टेंट for uniform distribution particularly multiplied with the length of this small part, dl, let me call it dl. So if you multiply this lambda with dl, now what is this lambda? From here you can define it. Lambda is a charge per unit length. If the distribution is uniform, फिर आप टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज़ द चार्ज इन दैट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लेंथ। सो ऐसे केस में जब हमारे पास चार्जेस एक लाइन में पड़े हों, तो फिर वहाँ पर किसी पॉइंट चार्ज की बजाय हम DQ यूज़ करेंगे, और वो DQ इस स्मॉल पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। उस DQ के लिए आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी का मालूम होना ज़रूरी है। इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट्स भी जब अगर आप यहाँ से देखें, कूलम पर मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अगर 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई शीट ऑफ चार्जेस है, अब मैं सिचुएशन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 2 डायमेंशंस की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरह हुई है कि 2 डायमेंशंस तीसरे डायमेंशंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं, और वो 3rd डायमेंशन जो है वो इस केस में इग्नोरेबल है। मतलब कोई बहुत लार्ज शीट है और उसकी थिकनेस जो है मिलीमीटर्स में है, और उस शीट की लेंथ और विड्थ जो है मीटर्स में है या किलोमीटर्स में है, तो ऐसी सूरत में हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस लेते हैं। हम लाइन की बात नहीं करते, हम स्फीयर की बात नहीं करते। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास किसी फ्रैक्शन ऑफ दैट एरिया के अंदर मौजूद चार्ज की बात होगी। यहाँ पे मैं बात करूँगा DQ की, ठीक है। दिस DQ वुड बी अनदर कांस्टेंट इंस्टेड ऑफ दिस। यहाँ पर होगा मेरे पास सिग्मा, एंड दिस इज स्मॉल सिग्मा, and multiplied with what? Multiplied with the area. This time I'm taking a fraction of area instead of fraction of length, and this sigma is what? This sigma is surface charge density, and it is charge per unit area. And if the distribution of charges is uniform, then you can also write Q divided by A. Total charge divided by the total area. So this is the
surface charge density. What we call it? We call it surface charge density. And its unit is coulomb per meter square. And then in three-dimensional case, what we do? When the distribution of charge is such that they are spread in a three-dimensional space, what we do then? We just let me give you an example of a nucleus. न्यूक्लियस जो होता है वो एक थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इस तरह. assume it a heavy nucleus of some materials. Here we are having three-dimensional distribution of positive charges. So for such case we use the volume charge density, and charge in this case is let me take some part of that cube or sphere or any three-dimensional surface object, any three-dimensional object. So in that case dq is actually rho multiplied with dv. dv is the volume of that small part of the distribution. Rho is the volume charge density. From here you can write it this way, dq divided by dv. And if the charge is uniformly distributed in that three-dimensional space, so we can also write q divided by v. And from here you can see its units are coulombs per meter cube. So these different techniques or these different properties of distribution of charges would be used while we would be dealing with the electric field intensity due to continuous charge distribution. So मुझे ये ज़रूरी लगा कि आपके साथ इसको डिस्कस किया जाए. अब हम मूव करेंगे लाइन ऑफ चार्जेस की तरफ. मैं वन डायमेंशनल केस से स्टार्ट लूँगा. यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि चार्जेस एक लाइन में फैले हुए हैं. तो इस तरह की सिचुएशन अगर हमारे पास आ जाए, हमारे पास चार्जेस जो है एक लाइन में पड़े हुए हैं और हमें कहा जाए कि इस सिस्टम की वजह से, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसके लिए मैं ये मिटा देता हूँ. अच्छा, तो I am taking the first case when the charges are distributed over a line. So electric field intensity due to an infinite line of charges. चार्जेस जो है वन डायमेंशनली फैले हुए हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वन डायमेंशन. ये लाइन ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस जो हैं एक लाइन की सूरत में फैले हुए हैं. और मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. तो क्या तरीक़ाकार हो सकता है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस लाइन ऑफ चार्जेस का कोई फ्रैक्शन में उठा लेता हूँ, कोई प्रोपोर्शन उठा लेता हूँ. लेट्स सपोज दिस इज दैट पार्ट एंड आई कॉल इट डी वाई. डी वाई इज द पोर्शन ऑफ दैट लाइन ऑफ चार्जेस. एंड मैं ये एज्यूम करता हूँ कि इसके अंदर चार्ज जो है दैट इज डी क्यू. अब इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से, इस डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में वेक्टर होगा और वो होगा डी ई.
बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ चार्ज। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह लिख सकता हूँ, दैट इज k q डिवाइड बाई r स्क्वायर, सो q is dq divided by r square. R is the distance from here to this point. I call it r. And now this length here is x, and let me call this length is y. So यहाँ पे जो एंगल है इसको मैं थीटा कह देता हूँ। तो जो ये DE है ये इस एक्सिस के साथ भी वही एंगल बनाएगा थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाता हूँ। कौन कौन से? एक कंपोनेंट जो है, लेट मी चेंज द कलर, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। अब इस कंपोनेंट को मैं क्या कह सकता हूँ, DEX, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलग है, मैं एज्यूम करता हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस, और इस कंपोनेंट को मैं कहता हूँ DEY। अब ये एक इस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैं अगर इधर लिखूँ DEX, then it is DE cos theta and DEY is equal to DE sin theta। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रा नोट कर लें, अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ या यहाँ पे कोई फ्रैक्शन लूँ DQ बिल्कुल उतना, और उसकी वजह से चेक करूँ इस पॉइंट के ऊपर, तो ये वेक्टर इधर होगा, और फिर मुझे इस वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स बनाने होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो इस डायरेक्शन में होगा ये इसका x कंपोनेंट होगा, वो इसका y कंपोनेंट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर हम सिमेट्री एज्यूम कर ले, जितने भी इधर से स्मॉल फ्रैक्शन चार्ज के मैं लूँगा, उन सब की वजह से यहाँ पे जो सिचुएशन होगी उसमें होगा ये कि उन सारे स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से जो फील्ड्स हैं, उन सारे फील्ड्स का एक्स कंपोनेंट जो है वो सारे एक डायरेक्शन में है, राइटवर्ड है। लेकिन अगर आप उनके वाई कंपोनेंट्स को देखें तो वो जो चार्ज इस लाइन से ऊपर है उसकी वजह से जो वाई कंपोनेंट होगा वो डाउनवर्ड होगा, और जो इस लाइन से नीचे है उसकी वजह से अपवर्ड होगा। और अगर सिमेट्री एज्यूम की जाए तो इनकी कंट्रीब्यूशन कैंसिल करती है एक दूसरे को। हमारे पास जो रह जाता है दैट इज़ हमारे पास जो टोटल फील्ड रह जाती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल दोज स्मॉल DEs। लेकिन अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्मॉल जो डिफरेंशियल पार्ट है उस टोटल फील्ड का इसको इंटीग्रेट करूँगा। लेकिन इंटीग्रेशन से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ जो मेरे पास आया है, एंड दैट इज DEX इक्वल्स DE की जगह ये वैल्यू पुट कर लें कि DQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और साथ में cos थीटा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब DQ क्या है, DQ जो है वो आप जानते हैं, कुछ देर पहले हमने पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाई D लेंथ, एंड लेंथ दिस टाइम इज y, so DQ is lambda is DQ by dy, so DQ is lambda times dy। and how about this cos theta, इसको चेक करते हैं पहले। ये k lambda dy divided by r square। r क्या है, r square is the hypotenuse of this right angle triangle, so it's x square plus y square, so r square can be written as x square plus y square, so I write it here x square plus y, and if I write here cos theta, okay, so now I'm interested in total electric field intensity, so I must integrate this। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर एक मुझे मिलेगा
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि मैंने कहा कि वाई कंपोनेंट्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट टोटल एक्स कंपोनेंट्स का होगा वही हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। एंड दैट इज़ नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन डी वाई के ऊपर हो रही है, के लैम्डा कॉस थीटा डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको अगर हम आगे लेके जाएं, y जो है dy को मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं थीटा में कन्वर्ट करूँ, लेकिन चूँकि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो पहले मैं ये कर लेता हूँ कि इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ। माइनस दो इसके अगर हम पार्ट बना लें, एक माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और फिर 0 से प्लस इन्फिनिटी, लेट मी कॉल इट 0 पॉइंट। सो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी से चेंज करके 0 टू इन्फिनिटी कर लूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे ये इसके साथ सिर्फ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक। और ये हो जाएगा मेरे पास के लैम्डा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यानी 2 दफ़ा ये चीज़, एक दफ़ा माइनस इन्फिनिटी से 0 और फिर एक दफ़ा 0 से प्लस इन्फिनिटी, यानी ये चीज़ 2 दफ़ा लिखनी पड़ेगी। आप ये 2 बाहर लिख सकते हैं इस तरह। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है हमारे पास, डी वाई। अब डी वाई की जगह मैं क्या लिखूँ, ये एक डी वाई को मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप देखें y जैसा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप देख सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि टेंजेंट थीटा इज एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई base, and from here y equals x times tangent theta, and if you take its square you get y square equals x square tangent theta square, because here I am having y square. And for dy, if you can differentiate it with respect to theta, you get x times secant square theta, because tangent theta का जो differentiation है that is secant square theta, and from here you get the value of dy, that is d theta times x secant square theta। और ये वैल्यू अगर आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें तो आपको क्या मिलता है, एंड दैट इज x टाइम्स secant स्क्वायर थीटा d थीटा। ये dy की जगह मैंने पुट कर लिया। अब क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, इसमें 2k लैम्डा ये चीज़ें बाहर लिख लें, और अंदर यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 है इन्फिनिटी तक। यहाँ पे cos थीटा है और साथ में x है, तो आप जानते हैं, ये भी शायद आप जानते ही होंगे, जाहिर है कि secant थीटा इज़ 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा, 1 डिवाइड बाई cos थीटा। तो अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो ये 1 डिवाइड बाई secant थीटा है, और cos थीटा को जब secant स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 डिवाइड बाई secant थीटा मल्टीप्लाइड विथ secant थीटा, you get only secant थीटा। So here I am having x times secant थीटा साथ में d थीटा डिवाइडेड बाय x square plus y square। Now what is y? y यहाँ से मैंने फाइंड किया था, तो y को भी हटा लेते हैं, इसकी जगह x टेंजेंट थीटा लिख लेते हैं। सो आई वुड बी हैविंग x स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, एंड देन 2k लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी, x अपनी जगह पे, secant थीटा अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय, इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन है
तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से मेरे पास बच जाता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड दिस मल्टीप्लाइड विथ डी थीटा। नाउ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड ये एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 2k लैम्डा एक्स बाहर निकाल दे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 0 से लेकर इन्फिनिटी की बजाय, सॉरी यहाँ पे मैंने जब इंटरवल्स चेंज किए थे, यहाँ से dy से जैसे ही मैं थीटा में जाऊँगा मुझे इंटरवल्स चेंज करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा π/2। रीज़न बताता हूँ क्यों π/2 ये, बट लेट मी चेंज इट। हाँ अब ठीक है। यहाँ पे जो है ऊपर तो चूंकि हमारे पास सीकेंट थीटा है और नीचे भी मैंने कहा कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये लिख लें डी थीटा और सीकेंट थीटा और स्क्वायर ऑफ सीकेंट थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट थीटा इज 2k लैम्डा डिवाइड बाई एक्स और 1 डिवाइड बाई सीकेंट थीटा स्क्वायर रूट के अंदर, सॉरी इंटीग्रेशन के अंदर है 1 बाई सीकेंट थीटा इज वंस अगेन कॉस थीटा डी थीटा और कास का जो है इंटीग्रेशन वो साइन आता है, सो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन ऑफ थीटा and limits are 0 and π/2. So if I substitute the limits, I get E that is equal to 2k की जगह आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो 2 पाई लैम्डा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स x और साइन ऑफ 90 माइनस साइन ऑफ 0, तो इससे 1 आता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप देखें 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ये किसी इनफाइनाइट लॉन्ग जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी वजह से किसी पॉइंट पर कि जो कि डिस्टेंस x पे पड़ा हुआ है, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसमें जो लैम्डा है दैट इज़ द चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पे इंटरवल्स का मैंने नहीं बताया, इंटरवल्स मैंने कैसे चेंज किए। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बात की है ना कि डी वाई को हम चेंज कर सकते हैं किस चीज़ में, थीटा वगैरह में, एक्स सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अगर आप इधर देखें वाई इज एक्स टाइम्स टेंजेंट थीटा, अगर थीटा अगर y 0 है तो इसका मतलब है कि थीटा भी 0 है क्योंकि टेंजेंट 0 इज 0, और अगर y इनफाइनाइट है तो फिर यहाँ पे आप याद रखें कि एंगल जो है वो 90 होगा क्योंकि टेंजेंट ऑफ 90 इज अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि टेंजेंट थीटा इज साइन डिवाइडेड बाई काज, and for 0 cos is 0, so anything divided by 0 is undefined. So tangent theta is undefined for π/2. so इसलिए मैंने, चूंकि मैं y से थीटा में गया हूँ, इसलिए मैंने लिमिट्स इंटीग्रेशन के इंटरवल भी उसी तरह अकॉर्डिंगली लिए हैं। सो इस तरीके से हम किसी इनफाइनाइट लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि डेंसिटी हमने कांस्टेंटली ली है थ्रू आउट, तो इसके लिए हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हियर इज दैट रिजल्ट, सही है। और फिर इसके बाद हम मूव करेंगे रिंग ऑफ चार्जेस की तरफ, लेकिन चूँकि और फिर
सो इसके बाद हम रिंग ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात ज़रा याद रहे कि अप साइड या डाउनवर्ड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस लाइन ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हर तरफ बाहर को निकली हुई होगी, ऊपर नीचे कोई फील्ड नहीं होगी। इस पॉइंट से फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट की बात करूँ, इधर यानी हर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होंगी, लेकिन ऊपर नहीं होंगी। बिल्कुल इस तरह जैसे बाल कंघी करने वाले ब्रश होता है, उसमें इस तरह लाइनें होती हैं हर तरफ, लेकिन ऊपर नहीं होंगी। इस डायरेक्शन में कोई फील्ड लाइंस नहीं होंगी। तो यही सिचुएशन होती है जब हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें वन डायमेंशनल केस में, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम बात करें शीट ऑफ चार्जेस की, सॉरी रिंग ऑफ चार्जेस की, तो उसमें थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट होती है। लेकिन मेरा ख्याल है इस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मेरा ख्याल है हमें वो दूसरी वीडियो में करना चाहिए। तो ये पहले मिटा दूँ। इसके साथ ही मैं ये लेक्चर वाइंड अप करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम चलते हैं रिंग ऑफ चार्जेस की तरफ और डिस्क ऑफ चार्जेस की तरफ। थैंक यू।